آپ آج کسی بھی پرابلم میں ہیں، خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے ایک پروٹیکشن ہے، ایک آرمر ہے، ایک ہتھیار ہے کیا وہ آپ نے پڑھا ہوگا پریشس بلڈ آف جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کا قیمتی خون، وہ عہد کا خون جو میرے اور آپ کے لیے بہایا گیا۔ اور میں بلیو کرتی ہوں اور خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ آج بہت سارے لوگوں کے بندھن ٹوٹ ہونے والے ہیں۔ When you are going to live، جب آپ یہ لفظ اپنی زندگی میں اپنے ایمان کے ساتھ ریسیو کریں گے تو خداوند آج کی آپ کی زندگی میں بانڈیجز کو ختم کرنے والا ہے۔ Accept these words with full، آپ کے فلی ریڈی ہوں آج کے کلام کو لینے کے لیے، سننے کے لیے، اور اپنی ساری جو آپ کی ناراستی ہیں، بدنی ہیں، ذہنی ہیں، سوچیں ہیں، شیطان ہے، دشمن ہے، آج خداوند آپ کو اس سب سے رہائی دینے والا ہے۔ کوئی آپ کے پاس موجود ہے یا جس کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ خداوند اس کو چھوئے، اس کو برکت دے، اس کو رہائی بخشے، یہ پروگرام اس کے ساتھ شیئر کریں، اس کو بلائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، یہ پروگرام اس کو دکھائیں، یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور سب سے زیادہ بڑی بات، آج آپ نے کیا کنٹریبیوشن کرنا ہے، اس کلام کو سننے کے بعد آپ نے کمنٹس میں اپنی ٹیسٹمنیز بھیجنی کہ یہ ورڈز خدا کے کلام کے، یہ الفاظ، یہ خدا کے بارے میں، یسوع کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ آپ کے دل، بدن، جان، سوچوں پہ کیسے اثر کر رہے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ جو آج کی ورس ہم لیں گے وہ افسیوں پہلا باب اس کی 7 آیت ہے۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مغفرتی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہوئی۔ ہمیں قصوروں کی معافی اور مغفرتی جو ہے جتنی ہے اس کے خون کے وسیلہ سے ہوئی ہے۔ کس کے خون کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ The precious blood of Jesus Christ، برے کا وہ خون جو میرے اور آپ کے گناہوں کو دھونے کے لیے کلوری پہ بہایا گیا ہے، یہ اس خون کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور عبرانیوں میں جب ہم 9 باب اس کی 22 پڑھتے ہیں، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم شریعت کو پڑھتے ہیں تو خداوند ہر چیز کے لیے کفارے کو مانگتا ہے، اور جب خداوند کفارے کو مانگتا ہے تو خون بہایا جاتا ہے۔ جب ہم عبادت کی کتاب پڑھتے ہیں اور جو جتنے بھی ہم پیچھے شریعت کو پڑھتے ہیں تو خداوند ہر قسم کی سوفی قربانی کے لیے خون بہانے کو چاہتا ہے۔ اور جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا 12 باب اس کی 23 آیت میں پڑھتے ہیں تو خداوند کیا کہتا ہے؟ موت کا فرشتہ مصریوں پہ بھیجتا ہے، اور خداوند کہتا ہے تو برے کا خون اپنے چوکھٹ پہ لگا دینا، تو وہ فرشتہ وہ چوکھٹ سے بغیر کچھ بھی ریاکٹ کیے نکل جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پاس اوور، وہ پاس اوور تھا جب خداوند کے خون کو، یسوع کے خون کو، اس ایک برے کو جو ساری چیزوں کے ساری عزت کے لائق ٹھہرا۔ جب یوحنا ریولیشن میں لکھتا ہے، مکاشفہ میں کہتا ہے جب میں آسمان پہ گیا تو کہتا ہے تو پریشان نہ ہو، وہاں سے تخت سے آواز آتی ہے اس کو کہ ایک ہی برا ان موروں کے کھولنے کے لائق نکلا ہے، اور وہ برا کون ہے؟ خدا کا برا جو اس دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے گیا، خداوند یسوع مسیح۔ There is a power in the blood of Jesus Christ۔ خدا کا خون، یسوع کا بہایا گیا خون ہماری پروٹیکشن ہے، ہمارا آرمر ہے۔ اور جب ہم یسوع کے خون کو پکارتے ہیں تو جس دن یسوع نے اپنا کلوری پہ خون بہایا تھا، شیطان کو اسی دن خداوند شیطان اور موت پہ غالب آ گیا۔ اور ہم کس کو ماننے والے ہیں اور کس کو ورشپ کرنے والے ہیں؟ یسوع کو۔ ہمارے ایمان کی کڑی کیا ہے کہ وہ آسمان سے زمین پہ انسان کے روپ میں آیا، اس نے دکھ اٹھائے، مار کھائی، صلیب پر چڑھ گیا، جان دی، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی کڑی ہے۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں اس پریشس بلڈ کے بارے میں۔ جب خداوند نے اسرائیلیوں کو کہا کہ تو اس
जब वो तो ब्लड अप्लाई करेगा तो फरिश्ता चला जाएगा। अब मौत के फरिश्ते को अगर आप इसको टेक्स्ट को मैं कॉन्टेक्स्ट में रखूं तो वो हुक्म मानता है ना, फरिश्ता तो और कुछ अपनी मर्जी से कर नहीं सकता, ही इज जस्ट ओबेइंग अ ऑर्डर। और जब खुदावन ने उसको भेजा और उसने जब उस खून को उसको कहा गया था जहां पे तुझे बरे का खून नजर आए तो वहां से क्या कर जाना, गुजर जाना, पास ओवर। और खून कलाम करता है। खुदावन पैदाइश की किताब में कहता है हाबल का खून मुझे पुकारता है, रो रो के पुकारता है। सो व्हाट डज मीन, कलाम करता है खून, बर्रे का खून कलाम कर रहा है। खुदावन फरमाता है क्या कहा होगा उस खून ने उस फरिश्ते को जब वो आया मिस्रियों की जान लेने के लिए, तो इस्राएलियों को घर बजाए पास ओवर, पास ओवर, आगे चला जा, पास ओवर। ये प्रोटेक्शन में है, ये घर प्रोटेक्शन में है, यहाँ पे बर्रे के खून को अप्लाई किया गया है। इसी तरीके से जब शैतान हमें लड़ने आता है, हमारे खिलाफ अपने सारे पंजे, अपने सारे हथकंडे उठा के आता है, तो जब हम यीशु के खून में कवर होते हैं तो खून क्या कहता है, पास ओवर, यू कांट टच हिम, यू कांट टच हर, तो इसको छू नहीं सकता क्योंकि वो उस लैम के उस प्रेशियस बरे के खून में प्रोटेक्ट है जो खुदा ने स्पेशल मेरे लिए और आपके लिए जमीन पे भेजा, अपना इकलौता बेटा। आज जब ये आप कलाम सुन रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि खुदावंद ज़करिया की किताब उसके 9 बाब उसकी 11-12 आयत में लिखता है और तेरी बाबत यूं होगा कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। खुदा ने उस अहद के खून को जो यीशु ने कलवरी पे बहाया, हमें गुनाहों के कुओं से निकाल के बाहर रखा, हमें नारास्ती से पाक किया, हमारे सारे जो हम असीर थे गुनाह के, खुदा ने हमें पाक किया। कैसे? उस प्रेशियस ब्लड से, यीशु के कीमती खून से। And there is a power in the name of Jesus. Hallelujah. And there is a power in the blood of Jesus. When you apply His blood in the faith, आपके अपनों पे, अपने बच्चों पे, अपने टूटे रिश्तों पे, अपने फाइनेंस पे, अपने हर उस जंग पे जो दुनियावी तौर पे इंसान और शैतान के साथ आप लड़ रहे हैं, खुदावंद आपको प्रोटेक्ट करता है। उसके प्रेशियस खून में जब आप छुप जाते हैं, अपने गुनाहों से आप रहाई पाते हैं। और आज मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद आज आपको आपके बॉन्डेजेस से, आपके प्रॉब्लम से, जो भी आज आप खुदावंद के आगे रखने वाले हैं, उस बरे को बुलाते हुए, उस पर ईमान रखते हुए, जो यहूदा का बबर है, जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो मेरा और आपका निजात देंदा है, जो मेरा और आपका बचाने वाला और मेरा और आपकी जिंदगियों का बादशाह है। जब उसको आप पुकारते हैं तो उसके खून में अपने आप को छुपाते हैं, तो खुदावंद आपको सारे प्रॉब्लम से, उस पिट से बाहर निकाल के लेके आता है, उस मेस से बाहर लेके आता है। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं तेरे असीरों को अंधे कुओं से निकाल के लाया। और खुदावंद उस अहद से आपको उन अंधे कुओं से निकाल के ले आता है, चाहे वो गुनाह के कुओं में, गुनाह के अंधेरे में है, चाहे आप आज किसी भी प्रॉब्लम में है, खुदावंद यीशु मसीह का खून हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है, एक आर्मर है, एक हथियार है दुश्मन से लड़ाई करने के लिए। आज मैनी पीपल, मैं बिलीव करती हूँ आज बहुत सारे लोग डिलीवर होने वाले हैं। आज आप हमें कॉल करें, अपने मैसेजेस में लिख के भेजें अपनी रिक्वेस्ट, अपने जो आपके कमेंट्स में लिख के भेजें, और आज की डेट, टाइम और अपनी रिक्वेस्ट को अपनी बुक में लिख लें, एक नोटबुक में लिखें। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ खुदावंद की हुजूरी में, खुदावंद आज आपको रहाई देने वाला है, आपको डिलीवर करने वाला है। बिकॉज देयर इज अ पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो बरे का खून जिसने पूरी दुनिया को नाराजगी से पाक किया, आज आपको पाक करने वाला है, आपको स्पिरिट से निकालने वाला है। और खुदावंद, मैं जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन सबको खुदावंद पाक खुदा मैं तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद पाक खुदा तेरी निगरानी में देती हूँ, तेरी बेटे की सलीब के नीचे कलवरी के ऊपर रखती हूँ, और उसका बहता हुआ खून और उसकी पसली से बहता हुआ पानी इन सब के लिए मांग लेती हूँ। कम एंड जॉइन अस, और अपनी रिक्वेस्ट आज लिखें यहाँ पे, ताकि हम आपके लिए प्रेयर कर सकें, हम आपके लिए बाद में भी प्रेयर कर सकें, और आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं
आज अपने आप को ईमान के साथ उसकी सलीब के नीचे लेके आए। और अब सवाल उठेगा, हम तो रोज ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा नहीं होता? हम यीशु को बेचते हैं। यीशु को बेचना नहीं है, यीशु के साथ रिश्ता बना। जब आपका रिश्ता खुदा से बन जाता है तो फिर आप यीशु को बेचते नहीं हैं। हम एट द एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सब कुछ करते होंगे लेकिन स्टिल वो भी बॉन्डेजेस में। क्यों हम अभी तक बॉन्डेजेस में हैं? क्यों हमने अभी भी हम अंधेरे कुओं में कैद है? क्योंकि हम यीशु को सिर्फ एज ए हथियार इस्तेमाल करते हैं, अपना नजात दहिंदा और बचाने वाला नहीं समझते। हम उसको रेगुलर लाइफ में सिर्फ आर्मर इस्तेमाल करते हैं, लड़ाई के लिए हथियार समझते हैं दुश्मन के साथ, लेकिन उसको पूरी तरीके से अपना खुदा नहीं समझते। जब हम उसका खून भी अप्लाई करते हैं और लोगों की सुनी सुनाई बातों पे भी अमल करते हैं, बुतों के सामने कैंडल्स जलाते हैं, सजदा करते हैं, हाथ जोड़ के घुटनों के बल बुतों के आगे जाते हैं और कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरी बॉन्डेजेस आर स्टिल देयर। क्योंकि हमने पूरे तरीके से उसके खून को, उसके बहाए हुए खून को और उसकी कीमती जान जो उसने सलीब पे दी वो ऑनर नहीं देते हैं। हमारा ईमान डावाडोल और कमजोर हो जाता है जब दुश्मन हमसे लड़ने आता है। तो हम उस हथियार को जो हमें छुपा के रखता है, बचा के रखता है, सिर्फ हथियार समझते हैं, उससे रिश्ता नहीं बनाते। खुदा के कलाम में से मैंने पैदाइश में से आयत कोट की कि खुदा ने फरमाया, काइन को हाबिल का खून मुझे पुकारता है। जब हम यस्सु के खून को अप्लाई करते हैं तो शैतान को कहता है, गेट आउट हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये शख्स मेरी प्रोटेक्शन में है, मैं इसकी जिंदगी का बादशाह हूँ और ये मुझसे बिलोंग करता है और ये मेरे अहद का बच्चा है, तो इसको छू नहीं सकता। क्या आज हम ऐसा करते हैं? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए? पहला पतरस उसकी पहले बाप उसकी 24 आयत में लिखा है, चुनाचा हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानंद है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया। जब हम कहते हैं खुदा इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुदा का कलाम कभी मुरझा नहीं सकता, गिर नहीं सकता। इसी तरीके से उसके वादे जो उसके जुबान से निकलते हैं कभी गलत साबित नहीं हो सकते। अगर हम होते हैं तो हम गलत साबित होते हैं जब हमारे मुंह की कही गई बातें जो हम दुनियावी तौर पे कहते हैं उनको नजर में नहीं लाते, जब हम अपने दुनियावी गुनाहों को नजर में नहीं लाते, जब हम यीशु को बेचना शुरू कर देते। आज हमें जानने की जरूरत है, देर इज हमारे पास सबसे बड़ी चीज है। मैं कहती हूँ सब, मेरे पास यीशु है तो मेरे पास सब कुछ है और इसमें कोई शक नहीं। अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर यीशु से बढ़ के आपकी कोई ख्वाहिश हो रही है तो यीशु पूरे तरीके से आपकी जिंदगी में नहीं है। अगर आप अभी भी अपनी बहुत सारी कठिनाइयों को सामने रख के चल रहे हैं जो आप बिलीव करते हैं यीशु का आपकी जिंदगी में होने से खत्म हो जानी चाहिए, तो हम में कुछ कमी है। जब हम उन कमियों पे ओवरकम आ जाते हैं तो फिर दूसरे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी कॉल में चैलेंजेस होते हैं, हमारी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमें दुनियावी चैलेंजेस वैसे नहीं मिलते जैसे हम पिट में होते हैं, हम मेस में होते हैं, हम मिस्ट में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, गुनाहों में गिरे हुए होते हैं। So there is a power today. If you accept him today as a Lord, as your Savior, अगर आज आप यीशु को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा बादशाह मानते हैं, पूरे दिल से कहते हैं खुदावंद मुझे अंधेरे के कुएं से आज बाहर निकाल, तो वो क्या फरमाता है? मैं अहद के खून से तुझे धो डालूंगा और तेरे असीरों को अंधेरे के कुओं से बाहर लेके आऊंगा। आज गुनाह की गुलामी से, कर्जे की गुलामी से खुदावंद बाहर निकालने वाला है। अगर आप पे कोई कर्ज है तो खुदावंद आज आपको बाहर निकाल, आज अपनी जिंदगियों से वो सारी कर्ज को, आज अपनी जिंदगियों से वो सारे मिस्ट को, अंधेरे को, गुनाहों को यीशु के खून से धो के साफ कर दे। कहे खुदावंद मैं तेरे खून को पुकारती हूँ, वो तेरा खून जो मुझे सारी नाराजगी से पाक करता है। खुदावंद मेरे बदन को छू और मुझे औलाद अता फरमा।
खुदा मेरे फाइनेंस को छू और मेरे खतों को अपने गायबी खजाने से भर दे। ऐ खुदा पाक खुदा मुझे गुनाह की इस सीढ़ी से बाहर निकाल। आज दिन है आपके लिए, राइट डाउन, अपना नाम लिख के भेजें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के भेजें, आज की डेट अपनी लाइफ में नोट कर लें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नोट कर लें, और ठीक 3 महीने के बाद अपनी लाइफ में अगर आज आप उसके ब्लड से धुल के पाक और साफ होते हैं और उसको अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो आज की डेट अपनी लाइफ में लिखें। खुदावंद आपको आज आजाद करने वाला है। यू आर गोइंग टू डिलीवर टुडे नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। देयर इज नो टुमारो फॉर द लॉर्ड, नाउ टुडे नाउ। जस्ट राइट इट डाउन योर प्रेयर रिक्वेस्ट, डेट, टाइम, और खुदावंद के इस खून से धुल के पाक और साफ हों, और खुदावंद इस वादे को याद रखेगा, क्योंकि गॉड इज टेलिंग मी राइट नाउ बहुत सारे लोग आज आजाद होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके और हम सीख सकें हर रोज़ कलाम के साथ हम कैसे गुजार सकते हैं।